Hello, Bachcho. Let's read this question. Question says, let 7 plus 4 root 3 raised to power n is equal to I plus f is equal to nc0 7 raised to n plus nc1 7 raised to n minus 1 4 root 3 raised to 1 plus so on. Equation number 1, where I and f are integral and fractional parts respectively. It means that fractional part f is 0 is less than f less than 1. Now, 0 is less than 7 minus 4 root 3 less than 1 implies that 0 is less than 7 minus 4 root 3 raised to power n less than 1. Let 7 minus 4 root 3 raised to power n is equal to f dash is equal to nc0 7 raised to n minus nc1 7 raised to n minus 1 into 4 root 3 raised to 1 plus so on. Equation number 2 implies that 0 is less than f dash less than 1. Adding first and second so that irrational terms cancelled out. I plus f dash is equal to 7 plus 4 root 3 raised to n plus 7 minus 4 root 3 raised to n is equal to 2 nc0 7 raised to n plus nc2 7 raised to n minus 2 4 root 3 raised to 2 plus so on. F plus f dash is equal to even integer implies that f plus f dash must be an integer. 0 is less than f plus f dash less than 2 implies that f plus f dash is equal to 1. With help of above analysis, answer the following questions. If 9 plus root 80 raised to power n is equal to I plus f, where I and n are integers and 0 is less than f less than 1. So, options are I is an odd integer, I is an even integer, I plus f 1 minus f is equal to 1, 1 minus f is equal to 9 minus root 80 raised to n. बच्चों की कॉन्सेप्ट a plus b raised to power n plus a minus b raised to power n is equal to 2 times nc0 a raised to n plus nc2 a raised to n minus 2 into b square plus so on. बच्चों यहां ध्यान से देखिए b raised to 2, ये b वाली जो टर्म्स है वो इरेशनल है और इनकी पावर इवन बन रही है. तो बच्चों इवन पावर बनने से ऑल इरेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स बन जाते हैं और इसीलिए ये पूरा ब्रैकेट इंटीजर बन रहा है. तो इज इक्वल टू इवन इंटीजर. बच्चों आप अच्छे से जानते हैं 80 इज लेस देन 81 implies root 80 is also less than root 81 implies that root 80 is less than 9. बच्चों आपको पता है रूट 80 की वैल्यू होती है 8.944 लेस देन 9. तो बच्चों यहां 9 माइनस रूट 80 इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. तो बच्चों 0 लेस देन 9 माइनस रूट 80 पावर n इज ऑल्सो लेस देन 1 रेज टू पावर n 1. तो बच्चों 9 माइनस रूट 80 रेज टू पावर n के लिए हम लेते हैं सपोज f dash is equal to 9 minus root 80 raised to power n.
और हम लिख सकते हैं 0 इज ऑल्सो लेस देन एफ डेज लेस देन 1। बच्चों अभी I plus f days will be equal to, बच्चों I plus f का वैल्यू 9 प्लस रूट 80 रेस टू पावर n दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 9 प्लस रूट 80 रेस टू पावर n प्लस एफ डेज का वैल्यू हमने लिया है 9 माइनस रूट 80 रेस टू पावर n। और बच्चों आप जान a रेस टू n प्लस nc टू a रेस टू n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 nc0 7 रेस टू n प्लस nc2 7 रेस टू n माइनस टू 4 रूट 3 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ हमारा होगा 2 ब्रैकेट में nc0 9 रेस टू n इंटू प्लस nc2 9 रेस टू n माइनस 2 एंड रूट 80 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बच्चों यहाँ इरेशनल नंबर है रूट 80 जिनकी पावर बनती है इवन नंबर, तो बच्चों इवन पावर से इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये ब्रैकेट पूरा इवन इंटीजर बन जाएगा और 2 टाइम्स इंटीजर वो बनेगा इवन इंटीजर। बच्चों याद रहे I प्लस एफ डेज का वैल्यू हमें मिल रहा है इवन इंटीजर, लेकिन I इज इंटीजर। तो f प्लस एफ डेज मस्ट बी एन इंटीजर। बच्चों ध्यान से सुनिए, I इंटीजर है और एडिशन इवन इंटीजर है, तो इसीलिए f प्लस एफ डेज इंटीजर बन रहा है। और बच्चों f इज द फ्रैक्शनल पार्ट, सो 0 इज लेस देन f लेस देन 1, और आप जानते ही हैं 0 प्लस एफ डेज इज लेस देन 1। तो बच्चों यहाँ होगा 0 इज लेस देन f प्लस एफ डेज इज लेस देन 1 प्लस 1, therefore 0 is less than f plus f dash less than 1 plus 1 होगा 2। तो बच्चों यहाँ अच्छे से समझिए, f plus f dash का वैल्यू 0 और 2 के बीच में है और f plus f dash इंटीजर भी है और 0 और 2 के बीच में only one integer and it is 1, so f plus f dash का वैल्यू 1 होगा। implies that f plus f dash is equal to 1। हमने डिराइव किया f plus f dash is equal to 1, तो बच्चों f dash का वैल्यू होगा 1 माइनस f, लेकिन बच्चों हमने f dash के लिए लिया हुआ है, आप देख सकते हैं f dash is equal to 9 माइनस रूट 80 रेस टू पावर n, तो यहाँ f dash इज इक्वल टू 9 माइनस रूट 80 रेस टू पावर n है, इसीलिए f dash का वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस f इज इक्वल टू 9 माइनस रूट 80 रेस टू पावर n बनेगा। और बच्चों हम जानते हैं I प्लस एफ डेज इज इक्वल टू इवन इंटीजर। मैं लिख रही हूं I प्लस एफ डेज इज इक्वल टू इवन इंटीजर। बच्चों हमारे पास f प्लस एफ डेज का वैल्यू है 1, सो I प्लस 1 इज इक्वल टू इवन इंटीजर। Therefore I is equal to even integer minus 1। Therefore I is equal to, बच्चों इवन इंटीजर से 1 को सब्सट्रैक्ट करो तो वो बनेगा ओड इंटीजर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला कि I ओड इंटीजर I प्लस एफ मल्टीप्लाई 1 माइनस एफ इज इक्वल टू I प्लस एफ का वैल्यू हमारे पास है
9 plus root 80 raised to power n. Multiply 1 minus f का वैल्यू 9 minus root 80 raised to power n is equal to, बच्चों ब्रैकेट 9 plus root 80 into 9 minus root 80 whole power n is equal to, आप जानते हैं a plus b मल्टीप्लाई a माइनस b हो तो हम लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. सिमिलरली यहाँ 9 स्क्वेयर माइनस रूट 80 स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 माइनस रूट 80 का स्क्वेयर 80 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 81 माइनस 80 दैट इज 1. 1 रेज टू n विल बी इक्वल टू 1. तो बच्चों i प्लस f 1 माइनस f बन रहा है 1. नाउ चेकिंग द ऑप्शंस. ऑप्शन फर्स्ट i इज एन ऑड इंटीजर. तो बच्चों हमने यही देखा है कि i प्लस f i is odd integer. Option A is correct. Option B I is an even integer. बच्चों odd integer जब बना है तो even integer कैसे हो सकता है? B cancel. Option C I plus f 1 minus f is equal to 1. तो बच्चों हमने अभी डिराइव किया I plus f 1 minus f is equal to 1. Option C. ऑप्शन डी में दिया है बच्चों 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 9 माइनस रूट 80 रेज टू पावर n. तो हम देखें यहाँ 1 माइनस एफ का वैल्यू 9 माइनस रूट 80 रेज टू पावर n. बच्चों यही है ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स. I hope you understood it well. Best of luck.